آمین۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھیں کھولیں گے۔ یسوع بادشاہ کے نہایت مبارک نام میں تمام مومنین کی سلامتی ہو، آمین۔ عزیزو، آج ہم بائبل مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا یوئیل نبی کے معرفت لکھی گئی، پاک روح کی رہنمائی سے لکھی گئی کتاب یوئیل مقدس، یوئیل نبی کی کتاب کو ہم دیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے، اور اس کا دوسرا باب ہم سب نکالیں گے جن کے پاس بائبل مقدس ہے۔ یوئیل نبی کی کتاب اور اس کا دوسرا باب، اور اس کی صرف ہم ایک ہی ورس کی تلاوت کو سنیں گے۔ ورس نمبر 28 ہے یوئیل کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 28ویں آیت مقدسہ کی تلاوت میری بیٹی مسز خرم بہن اس کی تلاوت کریں گی، اونچی آواز میں۔ خدا ان کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ آمین۔ آمین۔ تھینک یو سسٹر جی، خدا بڑی برکت دے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو کہ آج پھر سے خدا نے ہمیں کلام اقدس کو سیکھنے کا فضل عطا کیا اور کلام کو سننے کا ہمیں خدا نے موقع دیا۔ آج کے میسج کا ٹائٹل ہے خواب۔ ہم خواب کے تعلق سے سیکھیں گے کہ کیوں خواب آتے ہیں، اور کیا واقعی خواب آتے ہیں یا یہ صرف انسان کے ایک ذہنی خیالات ہوتے ہیں، یا واقعی خواب آتے ہیں۔ اور خواب کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے، یہ ایک نیا ٹاپک ہے جو مجھے میری بیٹی نے مسز خرم نے کہا کہ پاسٹر جی ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اس تعلق سے بھی ہمیں سکھایا جائے کہ خواب کیوں آتے ہیں۔ بھائی تک خدا کے خادم کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے؟ بڑے دھیان سے ہم کلام خدا کو سنیں گے، اور ساؤنڈ سسٹم کے ذریعہ سے جہاں جہاں پر میری آواز جا رہی ہے، کلام کو عزت دیتے ہوئے ہم سب بڑی سنجیدگی سے کلام کی طرف توجہ کریں گے۔ آج کے میسج کا ہمارا کیا ٹائٹل ہے؟ جی آپ نے تو ٹاپک دیا ہے، خواب کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں یوئیل نبی خدا کا بندہ پاک روح کی رہنمائی سے یوں لکھتا ہے، خدا یوں فرماتے ہیں، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹیاں بیٹے اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب، بائبل مقدس میں یہ لفظ آیا ہے جی مسز چاند، یہ لفظ بائبل مقدس میں آیا ہے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ آج یہ بھی سیکھیں گے خواب اور رویا میں کیا فرق ہے۔ یہ چند ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے اور جن کی ہمیں ضرورت ہے، روزمرہ زندگی میں ہمیں ضرورت ہے، اور اگر ہمیں اس کی سینس ہوگی تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے میرے لوگ عدمی معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، یعنی کہ انہوں نے کلام کو سیکھا نہیں، اور انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق، خیال کے مطابق سمجھ لیا کہ یہ بات ایسی ہے۔ آج میں نے خواب آیا ہے کہ آج جی میرے تے کسی نے کوئی ٹونا شونا کر دیتا ہے، آج میں نے خواب آیا ہے خواب ساڑھے واسطے چنگا نہیں ہے۔ کئی دفعہ یہ چیزیں ہمیں سننے کو بھی ملتی ہیں، اور انسان آپ کو پتہ ہے وہم کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ خوابوں کا جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا صحیح طور پر، اور انسان
वहम का शिकार भी हो जाता है। कई दफा चंगा भला होता है बंदा, ख्वाबां की वजह तो वो बेचारा उसका चेहरा उतर जाता है, अफसुर्दगी उसकी जिंदगी में आ जाती है। लेकिन ख्वाब इसलिए खुदा हमें दे रहा होता है क्योंकि खुदा कुछ हमसे बात करना चाह रहा होता है। हाँ, कुछ नेगेटिव ख्वाब भी होते हैं जो आगाही के तौर पर हमें आते हैं। कुछ नेगेटिव ख्वाब होते हैं जो आगाही के तौर पर खुदा हमसे बात करते हैं। बाइबल मुकद्दस में खुदा का एक बड़ा अजीम नबी था जिसका नाम मुकद्दस यूसुफ नबी लिखा गया है बाइबल मुकद्दस में। और वो मुकद्दस याकूब खुदा के बंदा मुकद्दस इस्राइल का बेटा था यूसुफ, और वो बड़ा पाक दामन था, उसकी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी पाई जाती थी। याद रखिएगा, ख्वाबों की जो ताबीर है तब तक ये गिफ्ट हमें नहीं मिलता जब तक हमारी सोच में पाकीज़गी नहीं आती, तब तक हमें ख्वाबों की ताबीर करने का गिफ्ट नहीं मिलता। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप नेक्स्ट अपनी डायरी ला सकते हैं। अपनी पेन पेंसिल डायरी आपके पास होनी चाहिए, उस पर हम रिटन किया करेंगे। फिर ये बातें जो है फिर वक्त आने पर, मौका आने पर हमारे लिए बरकत का सबब बनती है। और यूसुफ नबी के ताल्लुक से लिखा गया है कि गुनाह उसके सामने ऐसे था जैसे प्लेट में पड़ा हुआ उसे मिलता है, लेकिन वो गुनाह की तरफ नहीं, वो अपनी आंखें यहोवा खुदा की तरफ उठाता है। दाऊद बादशाह कहते हैं, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक दुनिया के सोर्स से नहीं है, दुनिया के गुनाहों के अंदर मेरी मदद नहीं है, मेरी मदद यहोवा खुदा के अंदर से आएगी। ख्वाबों की ताबीर की ताल्लुक से मैं बात कर रहा था कि अगर आपके अंदर भी ये पैशन है कि खुदावन जो ख्वाब मुझे आते हैं उसका मतलब भी मुझे समझ आए, फिर सोच के अंदर पाकीज़गी होना बड़ा जरूरी है। कई दफा बंदा कहता है कि मैं दूध दे नाल नहाता होया, मैं कोई गुनाह नहीं करता, लेकिन सोच सारी गुनाह ना भरी होंगी। सोच के अंदर अगर गुनाह है तो आपको ख्वाबों की ताबीर नहीं समझ आ सकती। आप अच्छे ख्वाब को बुरा कहते रहेंगे, और जो आगाही का ख्वाब होगा वो आपको कह सकते कि साढ़े वास्ते बहुत चंगा है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में, आपकी सोच में, आपके किरदार में, स्पेशली आपकी आईज में, आपके ईयर्स में, आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में अगर पाकीज़गी पाई जाएगी तो खुदा आपको ख्वाबों की ताबीर देगा। एक कैद खाना के अंदर इस स्टोरी को हम सब जानते हैं कि यूसुफ भी उस वक्त बेगुनाही की हालत में कैद खाना में था, कोई गुनाह नहीं था किया, पाकीज़गी की वजह से वो गुनाह कैद खाना के अंदर था। लेकिन सादिकों की मुसीबतें जब भी आती खुदा उन्हें उनमें से रिहाई बख्शता है, क्योंकि वो पाक था, पाकीज़गी में रहता था, और इसलिए खुदा ने उसे सरफराज भी किया। वहां पर 2 और कैदी थे और वो अपना अपना ख्वाब बताते हैं, यूसुफ से शेयर करते हैं। वो बड़े परेशान थे कि हम बेचैन हैं, हमें ये ख्वाब आए हैं लेकिन इसकी हमें समझ नहीं आ रही क्या करें। तो जब यूसुफ से वो ख्वाब शेयर किए जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यूसुफ की सोच में चूंकि पाकीज़गी पाई जाती थी। आपने सुना होगा जी खुरम भाई, आपने सुना होगा कि खुदा पाक है, तुम भी पाक बनो, लेकिन शायद आज ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं कि सोच के अंदर पाकीज़गी का होना बड़ा जरूरी है। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग खुदा इससे जानता है। आज बेशुमार हमारी बरकतें इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि साड़ी सोच से पाकीज़गी है। चेहरे से हम बहुत मुस्कुराते हैं, सर आप हैं ही बहुत अच्छे, लेकिन सोच के अंदर उसी शख्स के लिए हमारे अंदर गुस्सा और हसद पाया जाता है। लेकिन जब हमारी सोच में पाकीज़गी पाई जाती है उस वक्त खुदा हमसे बोलता है। ख्वाब की ताबीर यानी खुदा हमसे बोलता है,
ख्वाब का तर्जमा करना, उसकी चीख तौर पर तशरीह करनी और ख्वाब का मतलब दूसरे बंदे के ऊपर अया करना, इसका मतलब जो बंदा उसका मकसद समझा रहा है खुदा उससे बोल रहा है। तो खुदा के पाक है, तो खुदा पाक सोच वाले शख्स के साथ बात करेगा। आप दूसरों के हार्ट को नहीं जान सकते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इंसान जाहिरी सूरत पर नक्शो निगार के ऊपर निगाह करता है, लेकिन खुदा हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर निगाह करता है। हमारा दिल अगर पाक है तो खुदा हमसे बात करेगा। ये हम अभी मैसेज स्टार्ट होने को है, लेकिन पहले हम सिर्फ ये चंद बातें सीख रहे हैं कि ख्वाब की ताबीर कैसे हमें पता चल सकती है। अभी हम अपने प्रॉपरली सरमन की तरफ आते हैं, लिखा हुआ है, और इसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। इसका मतलब है कि खुदा का रूह जब हमारी जिंदगियों में आता है, पाक रूह की मैं बात कर रहा हूं, तो पाक रूह कई दफा हमसे, क्योंकि पाक रूह के पास आपको पता है बॉडी नहीं है, हॉली स्पिरिट के पास ब्लड नहीं है। हॉली स्पिरिट एक पाक रूह है जो पानियों के ऊपर जुम्बश करता था। आज चूंकि पाक रूह के पास बदन नहीं है, इसलिए वो ख्वाबों के जरिए ईमानदारों से बात करता है। जब पाक रूह नाजिल होता है, पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है, फिर पाक रूह ख्वाबों के जरिए, इसे इंग्लिश में शायद ड्रीम्स बोलते हैं, स्वीट ड्रीम्स बोलते हैं, लेकिन स्वीट ड्रीम्स पावे जितने मर्जी तुसी मैसेज कर लो कि आपको स्वीट ड्रीम्स ही रात को आए, वो स्वीट ड्रीम्स आपको तभी आएंगे जब पाक रूह आपकी जिंदगी में होगा। बाकी सारे आपके मैसेज जो है ना वो रायगा जाएंगे। आप जिसे मैसेज कर रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू, स्वीट ड्रीम्स, आपको पता है वो शख्स कितना अच्छा है। आप अपनी मोहब्बत का इजहार तो कर रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे, लेकिन ये यंगस्ट के अंदर ज्यादा मैसेज किए जाते हैं। जो बंदा थोड़ा जिहा बड़ा हो जाता है, उधर किसी ने नहीं कहता कि स्वीट ड्रीम्स, उधर कहता खुदावंद मैनू स्वीट ड्रीम्स दे। तब खुदा से हम खुद मांगते हैं खुदावंद मैनू अच्छे ख्वाब दे। तो जो टीन एजर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो एक दूसरे को बहुत कहते हैं कि स्वीट ड्रीम्स, क्योंकि उन्होंने ख्वाब भी पता नहीं केड़े आंदे ने, कैसी आसमाना ते उड़ने पे हैं। बच्चों को कई दफे जी समुद्रों के अंदर हम उड़ रहे हैं, पानी नीचे है, ऊपर हम प्रवास कर रहे हैं। ये बच्चों के ख्वाबों की मैं बात कर रहा हूं। एक और चीज हम सीखेंगे, कई दफा जैसे बच्चों की मैंने बताया, हाँ बच्चों से भी खुदा बोलते हैं, उनसे बात भी करते हैं ख्वाबों के जरिए भी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है। लेकिन कई दफा जो बच्चे एक्टिविटीज सारा दिन करते हैं, रात को, चूंकि बच्चों का अभी जो कंप्यूटर होता है, ये दिमाग जिसे ब्रेन हम बोलते हैं, ये बड़ा खूबसूरत अभी होता है, गुनाहों से भरा नहीं अभी होता, रफ्ता रफ्ता इसमें गुनाह आते हैं। शायद गुनाह अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी वो बहुत फ्रेश होता है, इसलिए उसके अंदर इतनी सैकड़ों शरियाने मौजूद है हमारे ब्रेन के अंदर, लिटिल कैपिलरीज मौजूद है, लिटिल मसल्स मौजूद है, बिग मसल्स भी मौजूद है, और वो सारा एक नाड़ों का मजमुआ खुदा ने हमारा यहाँ पर हेड के अंदर रखा हुआ है। वो चूंकि बच्चों का जो ब्रेन होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है और अभी फ्रेश होता है, इतनी उसमें टेंशनें नहीं होती, जिसकी वजह से डे को बच्चे जो काम कर रहे होते हैं, तो जब सोते हैं तो उन्हें फील होता है कि हम वही काम कर रहे हैं। जैसे लाइक एक बच्चा दिन में बहुत क्रिकेट खेलता है, तो रात को उसे ख्वाब आएगा जी मैं पाकिस्तानी कौमी टीम के क्रिकेट खेल रही। दिन को उसने क्रिकेट खेला है, रात को उसे फील होगा कि मैं जी पाकिस्तानी कौमी की जो क्रिकेट टीम है उसमें चले गया हूं, और वहां पर जाकर मैं कंपेयरिंग भी कर रहा हूं कि 6 लग गया है। उसे ये ख्वाब क्यों? क्योंकि दिन को उसने ये एक्टिविटी की, रात को ये दोबारा से रिपीट होगी। ये ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब नहीं है, वो ज़हन के अंदर, क्योंकि ज़हन के कोई बटन नहीं है ना, वरना रात को जब बच्चा सोता है तो मामा रोजाना बटन बंद कर दिया, मामा की ड्यूटी एक और लग जाए, लेकिन वो कोई ऐसा है नहीं बटन शटन जिसकी वजह से इंसान सोया होता है, वो माइंड फिर भी जो है ना वो थोड़ा बहुत काम करता रहता है। तो उसकी वजह से बच्चों की वही चीजें, एक्टिविटीज जो रिपीट होती है। लेकिन कई दफा खुदा बच्चों के साथ भी बोलता है,
उन्हें आवाज भी आती है। अगर हन्ना का बेटा आप सैमुअल देखें तो उसके ताल्लुक से लिखा है कि उसे आवाज आ रही थी, ख्वाब नहीं था, उसे वॉइस, गॉड की वॉइस उसे सुनाई दे रही थी, ए सैमुअल, ए सैमुअल। वो नींद से उठता है फौरी से, मैंने किसने बुलाया है, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। लेकिन वो चूंकि वाकई वहां पर अहद का संदूक और खुदा की हजूरी थी, खुदा सैमुअल से बात कर रहा था। और अजीजों, सैमुअल फिर खुदा की आवाज को सुनता भी है। आप सब जानते हैं इस सारी बात को, इस स्टोरी को आप सब जानते हैं। लेकिन हम चूंकि हमारा टॉपिक ख्वाब का है, थोड़ा टाइम 15 मिनट और बाकी इसमें हम कोशिश करेंगे कि सिस्टर काफी बड़ा आपने हयूज और बाबर के टॉपिक दिया और ये एक ही किस्त में नहीं कंप्लीट होगा, फिर इसे नेक्स्ट लेकर आगे भी हम चलेंगे। तो ख्वाब जो है, जब खुदा की तरफ से ख्वाब आता है, चाहे वो किसी भी सूरत में, किसी भी रंग में ख्वाब आए, जब खुदावंद की तरफ से ख्वाब आता है तो याद रखिएगा, वंस अगेन कह रहा हूं, याद रखिएगा, वो आगाही का ख्वाब होता है। जिस तरह बादशाह को ख्वाब आता है कि कुछ ऐसी गायें हैं जो बहुत ज्यादा मोटी हैं, सेहतमंद है, और कुछ ऐसी गायें हैं जो दुबली पतली है, कमजोर है, वीक है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि वो बादशाह को जब ये ख्वाब आता है तो वो देखता है कि जो पतली गायें थी उन्होंने मोटी गाय को खा लिया और फिर भी वो पतली ही पतली रही, उन पता नहीं कहां वो गोश्त चले गए इतना ज्यादा। तो बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि वो बादशाह को ख्वाब आया जिसकी ताबीर आपको पता है किसने की थी? कौन कौन कलाम के साथ इस वक्त है? उसकी ताबीर किसने की थी? बादशाह को जो ये ख्वाब आया था, मुकद्दस यूसुफ नबी ने उसकी ताबीर की थी कि हाँ, ये कहत के काल के साल है, कुछ ऐसे साल होंगे जैसे सेहतमंद गाय, उन्होंने बोला कि वो उसमें बहुत फसल होगी, फिर उसके बाद आगे कहत के साल स्टार्ट हो जाएंगे। ये करेक्ट ख्वाब की ताबीर की गई। आपको पता है ख्वाब की ताबीर हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन तुक्के शुक्के हर बंदा ला सकता है। तेन गुलाब का फूल नजर आया है, तेन मिलने वाले। कई दफा ऐसा होता है ना, कई दफा हम अपने वो माइंड से उसकी तशरीह कर देते, लेकिन मैंने स्टार्ट में क्या बोला था कि ख्वाब की ताबीर जो है वो पाक सोच वाला बंदा कर सकता है, दूसरा नहीं। जिसकी थिंकिंग के अंदर, जिसके सोचने के अंदर, जो चाहता भी है कि आज मैं इसके लिए गलती सोचना है, लेकिन वो फिर भी उसके लिए आपके अंदर से प्यार निकले, मोहब्बत निकले, चाहे उसने आपके साथ गलत किया हो। इस सोच के जो शख्स है उसे खुदा इस बरकत से भरता है कि वो ख्वाबों की ताबीर करता है। और यूसुफ ने जब ख्वाब की ताबीर की, ख्वाबों की ताबीर की, तो उसे बाइबल में लिखा है कि उसे फिर बहुत बड़ा रुतबा मिला, उसे बादशाह ने सरफराज किया क्योंकि उसने करेक्ट ख्वाबों की ताबीर की। मैंने स्टार्ट में भी बोला था कि ख्वाब जो है, जो खुदा की तरफ से आते हैं, वो आगाही होती है, खुदा आगाह करता है। हम सीखेंगे, अभी 10-15 मिनट मेरे पास और है, उसमें शॉर्टली सा स्पीड से मैं उसे क्लोज करते हुए आपको सारी चीज़ें डिफाइन करूंगा ज़रूर। लेकिन स्टार्ट में हम क्या सीख रहे हैं कि जो खुदा की तरफ से ख्वाब होते हैं वो आगाही, वो शाइन होता है। आज भी खुदा कई दफ़ा ईमानदारों की जिंदगी में ख्वाब पैदा करता है, खुदा उन्हें आगाह कर रहा होता है कि ये काम ऐसे होने वाला है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा अपने बंदों के ऊपर अपना राज खोल देता है, अपना राज खुदा खोलता है। और फिर खुदा के अंदर ये बोझ होता है, जिस तरह खुदा, आपको पता है सदूम और अमूरा को जब तबाह होना था, उस जगह पर, उस इलाका के अंदर बहुत बदी पाई जाती थी, नापाकी पाई जाती थी, और खुदा की आंख पाक है। अभी हमने एक गीत भी गाया था, तेरी निगाहे पाक को बदी नहीं पसंद। खुदा की जो निगाह है वो पाक है, उसे बदी नहीं पसंद।
اور پاک خدا جب سدوم اور عمورہ کو دیکھتا ہے خدا کو بہت دکھ ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ خدا اسے تباہ کرنے کے لیے سوچ لیتا ہے کہ اس شہر کا، اس میں رہنے والے چرند پرند سب جو ہیں وہ انہیں میں تباہ کروں گا۔ اور جب خدا جا رہا ہوتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہم سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ 3 اشخاص جو وہاں پر سے گزرے ہوتے ہیں، ابراہم سے جب ملاقات ہوتی ہے تو خدا اپنا، جی بیٹے آپ بھی سنیں گے غور سے، ان 3 جو اشخاص ہوتے ہیں وہ ابراہم کے اوپر خدا کا بھید، خدا کا جو فلسفہ ہوتا ہے، خدا کا جو راز ہوتا ہے وہ ابراہم کے اوپر کھولا جاتا ہے۔ ابراہم کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی ہم سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ابراہم چونکہ وہ بڑے پیارے ہارٹ کا بھرا شخص ہوتا ہے، اور مقدس جسے ابراہیم بھی ہم بولتے ہیں، ابراہم بولتے ہیں، ابراہم خدا سے شفاعت کرتا ہے، خداوند اگر وہاں پر اتنے لوگ ہوں گے اچھے تو تو انہیں بخش دے گا۔ بات چلتے چلتے بہت نیچے آ جاتی ہے کہ ابراہم کہتا ہے کہ وہاں پر کتنے لاسٹ میں لوگ ہوں گے، کس کس کو پتہ ہے؟ 2 نہیں، کہ چلے اس پر دوبارہ سے ایک کویسچن پوچھوں گا پھر میرا تسلسل چھوٹ جائے گا۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جتنے ریکوائرمنٹ تھی اتنے لوگ بھی نہ ملے تو کیا ہوا، وہاں پر پھر آگ اور گندک آسمانوں سے نازل ہوئی اور وہاں پر خدا کا غضب نازل ہوا بدی کی وجہ سے۔ خدا کو بدی نہیں پسند، اور بات پھر خواب پر آتے ہیں کہ خدا نے اپنا منصوبہ ابراہم پر اپنا راز کھولا۔ آج بھی جب خدا کی طرف سے خواب آتے ہیں بیسیکلی وہ ایک خدا آپ کو سائن دے رہا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اگر ہو سکے تو یہ کام درست ہو جائے ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ ہماری زندگی میں بڑے دکھ ہوتے ہیں اور خدا خواب کی صورت میں ہم سے بولتا ہے کہ آپ کے سارے دکھ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ شارٹلی سے بتاؤں گا خواب اور رویا میں کیا فرق ہے۔ جو لوگ بہت دعاؤں میں ٹھہرتے ہیں، بہت پریئرز کے اندر رہتے ہیں، انہیں رویا کا گفٹ ملتا ہے۔ فرسٹ گفٹ خواب ہے اور سیکنڈ رویا ہے۔ خواب وہ ہوتا ہے جب انسان گہری نیند میں سویا ہوتا ہے اور انسان کے ذہن اور دل کے اندر ایک سٹوری چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور فیل انسان کو ہوتا ہے کہ شاید میں وہاں پر ہی کھڑی ہوں یا میں وہاں پر کھڑا ہوں، اور واقعی میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ گہری نیند کے اندر اسے خواب بولتے ہیں، اور رویا اسے بولتے ہیں جس طرح خدا کی خادمہ موسٹلی مجھ سے بات کرتی ہیں کہ آج رویا میں خدا نے مجھ سے بات کیا۔ کئی دفعہ میں ماما کو بول رہا ہوتا ہوں کہ آج رویا میں ماما جی خدا نے مجھ سے کلام کیا، بات کیا۔ جب ایک شخص بہت پریئرز میں ٹھہرتا ہے پاکیزگی کی حالت میں، پھر دعا کرتے کرتے، اسے ارسلان بھائی تو آج نہیں ہے، وہ ایک دن بول رہے تھے، ہم بیٹھے تھے، کہ اس گفٹ کو وجدان بولتے ہیں۔ اس گفٹ کو وجدان بولتے ہیں کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور دعا کرتے کرتے آپ کی آئیز جو ہے اس طرح صرف آپ نے کرنا ہے تو آپ کو کئی دنوں کی سٹوری اس طرح کرنے سے آپ کو بتایا جاتا ہے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے 2 ماہ میں نے یہ سٹوری دیکھی ہے، 2 ماہ مجھ سے خدا نے بات کی ہے۔ صرف آئی لیشز آپ کی اوپر نیچے ہوں گی، اتنے سیکنڈ سے بھی پہلے خدا کام کرتے ہیں کیونکہ خدا تو بہت بڑا ہے۔ اسے وجدان بولتے ہیں، اس بلیسنگ کو، اس گفٹ کو وجدان بولتے ہیں، اور یہ بھی پاکیزگی کی وجہ سے ہماری زندگی میں اترتا ہے۔ ویسے نہیں، اگر ہماری سوچ پاک نہیں ہے یہ گفٹ نہیں مل سکتا آپ کو۔ اس لیے آج میں بتا رہا ہوں کہ آپ بھی خدا سے کہہ سکتے ہیں خداوند میرے ساتھ بھی خواب اور رویا میں بات کر۔ اور رویا میں نے بولا کہ جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، سوئے نہیں ہوتے، چاہے وہ آپ سجدے میں دعا کر رہے ہیں، چاہے بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، چاہے چل پھر کر دعا کر رہے ہیں، آپ جب بھی پریئر کی حالت میں ہو تو آپ سے خدا کلام کرے، حاضر دماغ ہو آپ اس وقت جب خدا آپ سے کلام کرے تو اسے رویا بولتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے ابھی ہم نے پڑھا تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بوڑھوں کو رویا نہیں مل سکتی۔ جو بیٹیاں بیٹی بوڑھے ہو جاتے ہیں مسیح میں، انہیں خوابوں کے ذریعے، رویا کے ذریعے خدا ان سے بات کرتا ہے۔
तो जब आपको ख्वाब आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको ख्वाब आता है, आप अपने ख्वाब को, जब भी आपको ख्वाब आते हैं, कई दफा कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं, मुझे आकर यहाँ पर बेटियां बेटे बताते हैं कि पास्टर जी रात में सानू ख्वाब आया लेकिन वो भूल गया, मुझे ठीक तौर पर याद नहीं है, बस मुझे इतना सा याद है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ या मैं उड़ रही हूँ, आगे वाली स्टोरी मैं भूल चुका हूँ। बेसिकली जब ये टूटे टूटे ख्वाब आते हैं, याद रखिएगा वो खुदा की तरफ से नहीं होते, वो इवल स्पिरिट्स की तरफ से आपको ख्वाब होते हैं। तारीकी की कुव्वतें जो अंधेरे के अंदर मूव करती हैं, काम करती हैं। बड़े दिलचस्प ये मैसेज है, गौर से सुनिएगा। आपको पता है खुदा एक हकीकत है, किस किस को पता है खुदा एक हकीकत है? खुदा का वजूद है आसमानों पर भी और जमीन पर भी, खुदा का वजूद है। इसी तरह डिमोनिक स्पिरिट्स जो तारीकी की कुव्वतें हैं, जिस शैतान ने बगावत की और उसे जमीन पर फेंक दिया गया, उसका भी वजूद है और वो एक नापाक रूह है, वो तारीकी की भरी रूह है जो आज खुदा के बंदों और बंदियों को तंग करता है, जिसे हम अबलीस भी बोलते हैं, शैतान भी बोलते हैं, डिमंस भी बोलते हैं, इविल स्पिरिट्स भी बोलते हैं, तारीकी की कुव्वतें, उनकी तरफ से भी वो भी। और वो तब ख्वाब हमें हमारे दिमाग में पैदा करती हैं। पर बेटे बहुत बुरी बात है, इतना जबरदस्त मैसेज चल रहा है, किसी ने हिलना जुलना नहीं, सारे सिर्फ मुझे 10 मिनट्स और दे दें, सिर्फ 10 मिनट और लूंगा, उसके बाद हम प्रॉपरली इसे क्लोज करेंगे। जो इवल स्पिरिट्स है, शैतानी तस्वीरें हैं, वो तब हमारे ब्रेन के अंदर ख्वाब पैदा करती है जब वो हमारे दिमाग से रिश्ता बना लेती है। जब हमारे ब्रेन के अंदर गुनाह आता है, बदी आती है, बदी के सबब से, गलत नेगेटिव सोच के सबब से, डीमंस, डिमोनिक स्पिरिट्स, तारीकी कुव्वतें, शैतानी अरवा, वो हमारे साथ रिश्ता बना लेती हैं। जिस तरह दुनिया में रहते हुए हमारे रिश्ते हैं, हम कहते हैं ये मेरी फूफो जी है, यही मेरे फूफा जी हैं, ये मेरी मदर है, ये मेरी मामा है, ये मेरे डैडी हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। कई दफा अबलीस भी कहता है कि ये मेरी बेटी है। वो फिर दिमाग के साथ रिश्ता बना लेती है, फिर विस्परिंग करती रहती हैं, और स्पेशली जब हम सोते हैं फिर हमें फील होता है हम अकेले हैं। बेसिकली हम अकेले होते नहीं हैं। उस वक्त जब हम सोए होते हैं, ख्वाबों के जरिए अबलीसी ताकतें, अबलीसी तस्वीरें हमारे साथ जिन्होंने रिश्ता बनाया होता है, नेगेटिव रिश्ता बनाया होता है, वो ख्वाबों के जरिए हमसे बात करती हैं। और उसकी रीजन क्या होती है खुरम भाई? अगर बाहर जितने भी मौजूद है, आवाज मेरी क्लियर आ रही है, खुदावंद बड़ी बरकत दे। वो क्यों हमसे इस तरह ख्वाबों के जरिए बात करती? सिस्टर जी कभी गौर किया आपने मेरे साथ? क्योंकि मैं इसलिए आज बड़ी तफसील से बात हम कर रहे हैं, उसकी रीजन क्या है? मुझे आकर बतेरे लोग बोलते हैं, ईशा भी बोलते हैं और भी बेटियां बेटे कि भाई साहब सानू ख्वाब आया है, जरा साडा ख्वाब ते सुनना। और खुदा ने चूंकि मुझे एक अच्छा हार्ट दिया हुआ है कि मैं सबकी बात सुनता हूँ, करता कम बातें हूँ, जब यहाँ पर खड़ा होता हूँ तब खुदा की बातें आप तक पहुंचाता हूँ। वैसे मैं बात हमेशा बड़े गौर से लिसन करता हूँ। और जो नेगेटिव अरवा है वो हमसे बात क्यों करती है ख्वाबों के जरिए? वो अपने होने का एहसास देती हैं। जिस तरह एक मां या बाप चाहता है ना कि मैं जितनी देर तक बच्चियां ना गल ना करा मैंने सिद्धक नहीं आता। कई दफा सुने माँ बाप कहते आज तो मैं अपनी धी ना गल ही नहीं की। जब मैरिड हो जाती बेटियां तब भी वो कहते कितने दिन हो गए धी ते ना गल ही नहीं की, आज मैंने बड़ा चंगा लग रहा है तू मैंने फोन किया ना। इसी तरह जो शैतानी तस्वीरें हैं उन्हें भी अच्छा लगता है जब वो आपसे रिश्ता बना लेते। फिर वो आपको अपनी बेटियां भी कह सकती हैं, आपको अपनी बहन भी कह सकती हैं, आपको कुछ भी रिश्ता दे सकती हैं। और वो जब आपके साथ रिश्ता बना लेती है फिर ब्रेन के अंदर वो काम करती है। कई दफा खुदा नहीं चाह रहा होता कि आज आप कहीं घूमने फिरने जाए, खुदा नहीं चाह रहा होता, लेकिन आप कहते हैं आज बड़ी उदासी, आज मेरा दिल नहीं घर लग रहा, आज दिल कर रहा है कि मैं बाहर जाऊं, घूमने जाऊं, आउटिंग करूं, मैं होटल में जाऊं, पार्किंग करूं। उस वक्त बेसिकली जो नेगेटिव रूह आपके साथ जिसने रिश्ता बनाया हुआ है वो आपको
उभार रही है कि आप आज ऐसा करें। लेकिन जब पाक रूह आपसे रिश्ता पाक रूह बना लेता है, फिर पाक रूह कहता है कि आज आपने प्रेयर नहीं की, आज आपने दुआ नहीं की, आज आपने पाक कलाम नहीं पढ़ा, आज आपने वर्शिप नहीं की, आज आपने उस खुदा के हुजूर झुका नहीं है जिसने आपको सांसें दी हैं। ये पाक रूह की बात कर रहा हूं। खुदा पाक रूह है और अबलीस नापाक रूह है। ये दोनों जो रूहें हैं, नापाक रूह और पाक रूह, दुनिया के ऊपर काम करती हैं। खुदा तो कायनात का मालिक और खालिक, आसमानों पर, जमीन के नीचे हर चीज के ऊपर खुदा कादिर है और खुदा इख्तियार रखता है। लेकिन अबलीस की, शैतान की तो इतनी औकात नहीं है। उसका सिर्फ इतना ही है कि वो खुदा के बंदों को डिस्टर्ब कर सकता है, बस, और कुछ नहीं वो कर सकता। लेकिन खुदा के आगे वो चूंटी की मानिद है। खुदा के आगे वो ठहर नहीं सकता, पाक खुदा के आगे वो ठहर नहीं सकता। और जब अबलीस ख्वाबों के जरिए हमसे बात करता है, वो कुछ ऐसे कई दफा में ख्वाब देता है। कई दफा बेटियां स्पेशली मेरे पास आती है, वो कहती है कि पास्टर जी मुझे ख्वाब रात को आया था, कोई शख्स मुझसे बच्चे को छीन रहा है। ये खुदा की तरफ से ख्वाब नहीं है, बेसिकली आपके बेबी की ब्लेसिंग को अबलीस ने रोका हुआ है। मुझे खुदा ने ब्लेस किया, बेबी की बरकत दी, मैं सीढ़ियों पर चढ़ी हूं या आ रही हूं तो मुझे किसी ने धक्का दे दिया और मेरी आंख खुल गई, मुझे फील हुआ किसने मुझे धक्का दे दिया है। ये ख्वाब खुदा की तरफ से नहीं है, ये शैतानी तस्वीरों के ख्वाब है। मुझे ख्वाब में स्नेक नजर आ रहा है और मुझे काट रहा है मुझे, इसका मतलब है शैतानी तस्वीरें आपके साथ है, वो आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपको नोचती हैं। उसके लिए आप किसी ऐसी खादमा या खादम के पास जाएं जो आपके लिए रातों को दुआ करे। उस वक्त तो आप आते हैं तो खुदा की खादम की जिम्मेदारी उसने आपके लिए दुआ करनी है हाथ बढ़ाकर। और इन तलियों के अंदर खुदा अपने खादमों की जो आइज होती है, गौर से सुनिएगा, खुदा के खादमों की आंखें और जो हैंड की तली है, इनके अंदर खुदा एक डिवाइन पावर रखता है जो आंखों से और हाथों से निकलती है। जब हाथ हम बढ़ाते हैं, अगर कभी सर पर रखते हो तो क्या बात है, लेकिन जब हाथ बढ़ाए जाते हैं तो अंदर से कुव्वत निकलती है। रात को मेरी बेटी थी पिया बहन, वो हदिया यहाँ पर बीज लेकर आई, कुदरती मैं यहाँ पर मस्बा पर था, तो मैंने जब उसके हाथ पर, वो मुझे हदिया पैसे चंदा देने लगी, तो जब मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर प्रे की, इतनी अनाइंटिंग थी, इतनी अजूरी, जैसे करंट एक मेरे अंदर से ट्रांसफर हो रहा है उनके अंदर। ये बेसिकली खुदा की तरफ से कुव्वत है। जब खुदा अपने खादमों को उठा खड़ा करता है, उनके अंदर खुदा रखता है। अगर आपको ऐसे ख्वाब आते हैं, कोई शख्स आपकी कोई चीज छीन रहा है, आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, आपकी बाइक गिर जाती है, आपको चोट लग जाती है, आपकी आंख खुल जाती है, ख्वाबों की बात कर रहा हूं, रियल नहीं। ख्वाब में कई दफा ऐसा लोग बताते हैं कि जी हमने पानी का गिलास लिया, वो पीने लगे तो हाथ से गिर गया। इसका मतलब है अबलीसी तस्वीरें काम कर रही है उस ब्रेन के अंदर। उस शख्स को जरूर प्रे करवानी चाहिए। अगर वो नहीं प्रे करवाएगा, अबलीस का जो रिश्ता आपके साथ वो मजबूत होता जाएगा। एक वक्त आएगा वो पीक पर चले जाएगा, फिर वो आपकी बरकतों को छीन भी लेगा। बरकतें अबलीस छीन लेता है, उसके अंदर ये नापाक कुव्वत भी है, वो ब्लेसिंग्स को छीन लेता है। लेकिन जब आप मौके पर आपको फील हो रहा है कि मुझे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं, तो आप फौरी प्रे करवाते हैं। आपने खुद भी करनी है, और करवानी मैं इसलिए कह रहा हूं, याद रखिएगा, कई दफा लोग बड़े खिलाफ होते हैं कि जी आप ही दुआ करो, तुसी की पादरियों को भजे जाते जी। बेसिकली गिरा हुआ शख्स कभी चल सकते हैं? अगर एक बंदा गिरा हुआ है, कभी तुसी देखा हो एक बंदा डिगा है तो वैसे ही चली जा रहे, जब तक वो खड़ा नहीं होगा वो कैसे चलेगा? जब वो खड़ा हो जाएगा पांव पर, फिर वो चलेगा। जब किसी शख्स को अबलीस ने गिरा दिया है, उसने खुद भी जोर लगाना है उठने का, और उससे किसने सहारा भी देना है कि बेटे आप खड़े हो। पास्टर का काम इतना ही है। वैसे पास्टर जो है बदनी तौर पर वो आपकी तरह ही है। कभी देखा किसी पास्टर ने तीन कान आईज सेम आपकी तरह ना, जैसी आप है। लेकिन जो चुने हुए खादम, उनके अंदर कुछ अलग होता है। उनकी रियाजत, उनकी मेहनत, उनकी दुआएं, उनके अंदर खुदा कुछ खास बरकतें रख देता है, जिनके जरिए फिर खुदा
बिग काम करता है, बड़े काम करता है। इसके लिए आज सारे गौर से सुनिएगा, कभी ऐसा ख्वाबों के जरिए आपके साथ कुछ गलत ख्वाब नेगेटिव आपको आ रहे हैं, आप सुबह उठते हैं, आप कहते हैं ख्वाबा ने चंगा बनू, रात को जी ख्वाब आया जी बसों का वो जो कैट के बेबीज, आप एक दिन मुझे बता रहे थे कि कैट के बेबीज थे, बिल्ली के बच्चे, वो कह रही थी आंटी के वो मुझे ऐसे नोच रही हैं, मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, मैं पकड़ पकड़ कर फेंक रही हूँ उन्हें। तो जब ऐसा हो तो आपने मौके को जाया नहीं करना, उसी डे में आप फोन करें अपने खादिम को या उससे राब्ता करें, खुद भी प्रे करें और उनसे दुआ करवाएंगे। वो प्रॉपर शैतानी तस्वीरें हैं जो ख्वाबों के जरिए आपको अपने होने का एहसास दे रही है, लेकिन वो प्रॉपर है शैतानी तस्वीरें। उनके अंदर ये कुव्वत है, वो आपकी खुशी को भी छीन सकती है, आपके रुपए पैसे को भी ब्लॉक कर सकती हैं, आपका एक्सीडेंट भी कर सकती हैं, आपको किसी की नजरों में बेइज्जत भी कर सकती हैं। इसलिए आपने उसका फौरी जो है सदेबाब करना। टाइम बहुत दौड़ रहा है, अभी मैसेज काफी पड़ा हुआ है, लेकिन शॉर्टली सर फिर दूसरी तरफ हम आते हैं। किसी दिन फिर इसके ताल्लुक से मैं तशरीह करूंगा नेगेटिव जो ख्वाब आते हैं। अगर ख्वाब में आप भैंसे देखती हैं ना, भैंसे देखती हैं, शेर देखती हैं, स्नेक देखती हैं, ये पक्की बात है कि ये शैतानी तस्वीरों की, शैतानी जो तस्वीरें, कभी घर में किसी ने स्नेक पाला है तो जब स्नेक की सूरत में आप पर अटैक हो रहा है तो इसका मतलब है साइन है कि इब्लीस आपको तबाह करना चाह रहा है। इसी तरह अगर आपको ख्वाब में फ्रूट्स नजर आते हैं, फल नजर आते हैं, तो ये एक गुड ब्लेसिंग है, ये एक अच्छी बरकत है अगर आपको फ्रूट नजर आ रहे हैं। अब अगर आप ख्वाब में हैं तो आप ख्वाब आपने देखा है, रात को सोते थे गहरी नींद में आपको ख्वाब आया कि दरवाजा खुल रहा है, तो ये भी बरकत है, ये भी ब्लेसिंग है। इससे भी आप जरूर अपने खादिम के साथ डिस्कस करें। खुदा ने अपनी खादमों को, अपने खादिम को ये खास तोड़ा दिया हुआ है ख्वाबों की ताबीर का। अरसलान भाई वो रात को भी मेरे साथ पास बैठे हुए थे, मिसिज साबिर भाई साहब, जितने भी कलीसिया के मेंबरान हैं, बेटियां जो क्वायर में मेरे साथ अपनी पर्सनल बातें ख्वाबों की वो डिस्कस करते हैं और खुदा के खादिम फिर इसे प्रे में रखते हैं। फिर खुदा उसका मतलब देता है, एग्जैक्ट तुक्का नहीं। जब एग्जैक्ट आपको उसका आंसर मिल जाता है फिर भलाई पैदा होती है कि ये ठीक ख्वाब है या गलत ख्वाब है। अगर आपको फील हो रहा है, अगर आपको फील हो रहा है कि आपके दाएं बाएं स्टार्स है और बड़ा अच्छा एक मौसम बना हुआ है, तो ये भी एक गुड साइन है, ब्लेसिंग का साइन है। अगर डोर खुल रहा है तो ये तो पक्की बात है, बरकतों का आपको साइन मिल रहा है। अगर आपकी गोदी के अंदर रिज्क आ रहा है, रिज्क की बरकत आ रही, तो ये ब्लेसिंग का आपको साइन है ख्वाब के। अगर आपकी गोदी में बेबी आ रहा है, चाहे पहले भी ताड़े को 5-7 बेबी है, बहुत अच्छी बात, इसका ये मतलब नहीं कि आपको और बेबी मिलने वाला है, नो 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 नो, इसका मतलब ब्लेसिंग है। हाँ, जिसके पास बेबी नहीं है उसकी गोद में अगर बेबी आ रहा है ख्वाब में, तो उसे खुदा बेबी देने वाला है। उस शख्स का तो बड़ा ही जरूरी है ना कि वो खुद भी प्रे करे, कलाम पढ़े और साथ में दुआ करवाए भी। क्यों? क्योंकि खुदा ने साइन दे दिया है कि तुझे मैं बेबी देने वाला हूं। अगर दुआएं तेरे लिए होंगी तो वो सलामती से तेरी गोद में आएगा, वरना इब्लीस छीन लेगा। लेकिन अगर खुदा ने पहले भी आपको बच्चे दिए, अभी आप और नहीं लेना की बरकत चाहते, तो फिर ये समझे कि खुदा आपकी गोदी में बड़ी बरकतें लेकर आया है, रुपए पैसे की बरकत। अगर आपने दुआ की, तो ये ख्वाब की बात कर रहा हूँ, सॉरी रोया को प्लीज सिस्टर जी पेंडिंग कर दें। रोया के भी काफी है तशरीह है, वो नेक्स्ट भी इसकी प्रॉपर हम सीखेंगे। अभी ख्वाब की कि ख्वाब में आप देख लें कि रोटियों के ढेर लग गए किचन के अंदर या आपके मेज के ऊपर, आपके दस्तरखान के ऊपर रोटियों के ढेर लग गए। इसका मतलब है आपके किचन में खुदा बहुत रिज़्क को पैदा करेगा, बहुत ब्लेसिंग्स। उसके लिए भी वो साइन क्यों दिया जा रहा है? साइन के बगैर भी खुदा रिज़्क दे सकता है। साइन इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप और दुआ करें, उस रिज़्क को इब्लीस छीन ना ले। बरकत आपके लिए जारी हो चुकी है आसमानों से, लेकिन आपको मिलेगी तब जब आप मजीद मसीह में पेवस्त होंगे, गहरे होंगे, उस वक्त आपको वो बरकत मिलेगी। आप गहरी नींद में थे, सुबह सुबह उठते ही आप कहते, पापा जी रात को मुझे ख्वाब आया, मेरी झोली में बहुत पैसे थे। पापा कहना पुत्र की थे,
उन्हें आप बता सकते हैं कि पापा जी ख्वाब इसी, उसका मतलब ये कि उस बच्चे के पापा को खुदा बहुत ब्लेस करने वाला है, कारोबार को खुदा ब्लेस करने वाला है। तो ये छोटी छोटी मैंने एग्जांपल्स दी हैं, अभी और बहुत कुछ है खुदा ने हार्ट के अंदर रखा हुआ है, लेकिन टाइम मुझे कह रहा है कि स्टॉप कर दे, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। फिर कभी खुदा ने कहा जी सिस्टर इतना काफी है, फिर खुदा ने किस दिन चाहा तो हम ख्वाब के ताल्लुक से और चीजें भी सीखेंगे। आज जो मोटी मोटी चीजें हैं कि नेगेटिव ख्वाब अबलीस की तरफ से तब आते हैं जब अबलीस हमारे पास से गुजरता नहीं है, बल्कि वो रिश्ता बना लेता है, और रिश्ता एक दिन में नहीं बनता। एक दिन में किसी को आप टाइम विश कर सकते हैं, किसी इस्लाम रिश्ता कैसे बनता है जब आप डेली मिलते हैं, इसका मतलब वो स्पिरिट पता नहीं कब से आपके साथ है, लेकिन अभी वो रिश्ता बन चुका है, अभी वो अपना इजहार कर रही है। जरूर 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 आप प्रे में ठहरें और दुआ करवाएं, पाकीज़गी की दुआ से आप आजाद हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। अबलीस की औकात नहीं है, क्योंकि मैं तो अबलीस को एक जिस तरह कहते हैं ना, मेरी कलीसिया जानती है कि अबलीस को खुद कहता हूं कि तेरी औकात नहीं है, तू सामने आ, यीशु के नाम से तू ठहर नहीं सकेगा, कोई ठहर न सके यीशु ना देगे। ये सिर्फ पाकीज़गी है और कुछ नहीं है। खुदा पाक है, आपका बदन, आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपकी आईज, आपके ईयर्स जब पाक हो जाते हैं, खुदा फिर काम करता है। वो खुदा फिर आपको सिर्फ यूज करता है, बेसिकली काम पास्टर नहीं कर रहा, काम फिर खुदा कर रहा है, और जलाल भी खुदा के नाम को है। आइए सारी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम प्रेयर करेंगे।